بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. اینڈ ہمیشہ کی طرح یہی دعا کہ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ. اب جو ویکینڈ ہے اس کا تو آغاز تو نہیں, کیونکہ آج سنڈے ہے اور کل سے اسکولز جو ہیں وہ کھل رہے ہیں اور بچوں کی روٹین جو ہے اب چینج ہونے والی ہے. بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی جو مائیں ہوتی ہیں, فادرز ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, سب کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. اور بڑی ایک طرف مجھے ایسا لگتا ہے خواتین کا ڈسپلن سا آ جاتا ہے, کیونکہ گھر میں جب بچے یا ینگسٹرز ہوتے ہیں, اسکول جا رہے ہوتے ہیں, کالج جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ باقی گھر والوں کی بھی روٹین میچ کرتی ہے, تو ایک بڑا ڈسپلن ماحول بن جاتا ہے. اور زندگی میں ڈسپلن رکھنا بہت ضروری ہے, پنکچویلٹی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں نے یہ ویسے جتنے ہمارے سینئرز آئے ہیں شوبز فرٹرنیٹی کے جو لوگ ہیں, انہوں نے خاص طور پہ ہمیشہ, اور میں نے یہ ان سے سیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ وقت کا خیال وہ رکھتے ہیں. یعنی اگر ہم نے ان کو فار ایگزامپل شو کے لیے 11 بجے کا ٹائم دیا تو لٹرلی 10:30 بجے آ جاتے ہیں, جو ینگسٹرز میں کم دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام زندگی کے اندر بھی آپ کہیں پہ بھی کمٹمنٹ ہو تو ضرور میک شیور کریں کہ آپ وقت پہ پہنچ جائیں. وقت پہ پہنچنے سے آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کا اچھا اثر پڑتا ہے, نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میرے پاس لوگ سمجھیں گے کوئی کام نہیں تھا تو ٹائم پہ آ گئے. یہ بڑی ہمارے السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ یہ بڑی میں حیران ہوتی ہوں ایسی سوچ کے اوپر. مجھے تو جو کوئی ٹائم دیتا ہے, اگر میں 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں تو مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار تو 2 منٹ بھی میں کیوں لیٹ ہوئی. بالکل. اور اکثر آپ میرے سے بھی پہلے آئی ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 12 بجنے میں 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے آپ سیٹ پہ آتی ہیں. میرے خیال سے ٹیزر ہم 20 منٹ پہلے چھوڑ دیتے ہیں فیس بک اور انسٹا پہ, تو اوبیسلی اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ آ چکی ہوتی ہیں. لیکن میرے آنے سے پہلے ہمارے ٹیم ممبرز آئے ہوتے ہیں جو بہائنڈ دا کیمرا ہوتے ہیں, تو اصل تو سٹارز وہ ہیں. لیکن اگر ہم صرف اپنی ٹیم کی نہ بھی بات کریں, عام زندگی میں بھی بات کریں, تو پلیز پنکچویلٹی کا, خاص طور پہ جتنے بچے بچیاں جاب انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں, آپ یقین جانیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی باتوں سے ایسے پتہ چل جاتا ہے اس شخص کو جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے. اگر آپ پنکچوئل نہیں ہوں گے آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہرحال جی, اس حوالے سے تو بات کر لی. اب جو اگلی بات ہم نے کرنی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ برانچ ایٹ ہوم کے فیس بک پیج کے اوپر ہم نے اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا. آج بڑے بھائی ہمارے فیوریٹ ہمیشہ کی طرح, میرا تو ہر گیسٹ بڑا فیوریٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کی خاص فرمائش پہ آج کی جو ہم نے پینلسٹ ہیں ان کو بلایا ہے, تو ان کا تعارف کرانے سے پہلے ہما, آج کل بڑا مزے کا بھائی. اچھا, مچھلی میں کم کھاتی ہوں, وہ جو ہڈی والی کانٹوں والی ہوتی ہے. کل ایک کانٹا گیا ہے میری گلے میں, تو میں نے کیا ہے نا, تو اس کے بعد نکلا, کیونکہ کچھ ہمارے محسن جعفر صاحب کے آفس میں کچھ فارمل گیسٹ بیٹھے تھے. اب میں نے کہا کہ میں اس طرح پکڑوں گی گلا اپنا, تو شکر ہے وہ نکل آیا کانٹا. ہوما یہ کیا تھا؟ مچھلی جو ہے, جو کانٹے والی مچھلی اگر آپ نے بنانی ہے, جس طرح کل میں نے اس کو ہٹوایا نہیں تھا. جب ہم کٹوا کے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز کرا دیتے ہیں تو کانٹے بھی اوبیسلی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں بائٹ کے ساتھ. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ مچھلی کا ہول پیس ہی لیں, اس کو فرائی کرا لیں اگر آپ کانٹے والی استعمال کریں. لیکن کل وہ بالکل اسمیل نہیں آ رہی تھی, مچھلی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی, کوکڈ تھی پراپر طریقے سے, اینڈ اٹ بہت مزے کی تھی. اپارٹ فرام دیٹ وہ ایپیسوڈ وہ میں نے نہیں دیکھی. اب میں اتنی نظر کا دھوکا کے کانٹا ہے, شکر ہے کچھ ہوا نہیں مجھے, ورنہ کیا ہوتا ہے ایک بات. اچھا سندر, مچھلی کے لیے اگر مچھلی آپ کی اچھے سے کوک ہوئی ہوئی ہے, بے شک میرینیشن میں تھوڑا فرق ہو تو چل جاتا ہے, لیکن اس کی کوکنگ جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کل اسٹارٹ میں اس کو فرائی کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا, تو ٹیمپریچر کا خیال رکھنا اور اس کی میرینیشن نہ اترے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, آج کیا بننے والا ہے؟ آج جو بننے والا ہے, آج کافی کچھ بن رہا ہے, اور تھوڑا چائنیز بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈرنک بھی ایک بنے گا, کولڈ کافی بنا رہی ہوں, اس کے ساتھ جی ڈرم ایٹ بنا رہی ہوں جو ونگس کیلے ونگس کا ایک حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور منی ڈرم اسٹکس جس کے بنتے ہیں, اور بالکل ویسے ہی جو ہے منی ڈرمٹس ہوں گی یہ, ٹھیک ہے, اور ونگس ہی کہہ لیں آپ. ڈرم اسٹکس ذرا, اچھا ان کا شارٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں, ڈرم اسٹکس جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ونگ کا ہی ایک پارٹ ہے, آگے والا پارٹ نہیں ہے, پیچھے والا پارٹ ہے جس کے اوپر زیادہ میٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کا میٹ تھوڑا نائف کے ساتھ کاٹ کے تھوڑا نیچے کر کے اکٹھا کر لیا تھا تاکہ وہ بائٹ ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ اتنے ہی سائز کا ہم کھائیں گے؟ ہاں اتنے ہی, ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز تو بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے. تو یہ ہاف آف دا ونگ ہے جس میں میٹ پارٹ زیادہ ہوتا ہے, اس کو میں نے نائف کے ساتھ جس طرح بتایا اکٹھا کر کے. عبدالرحمان آج کل جم کر رہے ہیں, تو کچھ 3-4 درجن ہی کھائیں گے تو جا کے کوئی تھوڑا سا کچھ حوصلہ ان کو اقبال بھائی ہونا ہے, ورنہ تو اس ونگ سے ان کا کچھ نہیں ڈرم اسٹک کا بننے میں. اچھا جی, اور کیا بن رہا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے چکن بن رہا ہے, کیشو نٹ, چکن کیشو نٹ بنے گا ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ, وہ بھی سرو کریں گے.
तो ये चीजें बन रही हैं आज और मैं बनाना शुरू करती हूँ और गेस्ट जो है हमारे वेट कर रहे हैं, यकीनन उन्हें बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और आपकी तरफ देख रहे हैं कि खाना कब बनेगा, खाना भी सर्व किया जाएगा, जल्दी से बुलाते जी। अब आपको पता तो चल चुका मेरे पहले मेहमान कौन है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। पीटीवी के साथ भी काम कर रहे हैं, मूवीज की हैं, प्राइवेट चैनल्स के साथ, बड़े मंझे हुए एक्टर हैं एंड ऑल टाइम फेवरेट। जल्दी से बुलाएंगे अहमद अब्दुर्रहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान, वो आपने साइज देखा है ड्रम स्टिक का, प्लीज जाके देखें। आपका मेरा क्या दिल तब से ना बैठ सा गया जरा। ड्रम स्टिक नहीं है ये तो। क्या कि जरा देखें प्लीज। नहीं दूर से फिर भी कुछ लग रहा है कि शायद बड़ी हो, लेकिन हाँ मेरा शो में आने का मकसद बहुत हो गया। नहीं प्लीज हुमा, 4-5 दर्जन इन्होंने छुपा के भी रखी होंगी आपसे। अब एक भी नहीं मिलेगी, एक भी है। अच्छा यूजुअली मैं तो चलता हूँ। नहीं आप रुके, यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी होती है, मैं भी देख के परेशान नहीं हूँ इस साइज की ना, है ना। कल ही बना रही थी जब फिश बनाई थी। कांटा फंस जाना था, मैं बता रही, मैं तो यही करके निकाला है। एक दफा कांटा ऐसा फंसा कि निकला ही नहीं, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने निकाला था। कैसे? अरे वाकई में? हाँ। कैसे, गला काटा तो नहीं ना? नहीं वो बड़ा उसने आराम से मुंह खुलवा के तो स्टिक डाल के अंदर वो जो उस तरीका ट्यूब टाइप होती है, वो जो चिमटा टाइप नहीं होती, उसको पता नहीं टेक्निकली क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो उसने निकाल दिया। और सीरियसली? हाँ। आपकी बेगम किधर थी उस वक्त? बेगम थी नहीं अभी। हाँ तभी ये हुआ, प्लीज बैठिएगा। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे जो मेरी अगली मेहमान है। शी इज वेरी टैलेंटेड, ऑल टाइम फेवरेट और हर दिल अजीज है। और इनकी डबिंग की बात करें टर्किश प्लेस की तो वो कमाल है, आवाज इनकी बड़ी खूबसूरत है और सबसे बढ़कर अच्छी इंसान है। तो जल्दी से बुलाएंगे रिज़ कमाली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची से खास तौर पे पहले नथिया गली गई, फिर नथिया गली से अब इधर आई हैं डायरेक्ट। मैं सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, लव यू पाकिस्तान। जितने लोग हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, बिकॉज आज के दिन यानी कि संडे वाले दिन हम जब आते हैं तो हम इस संडे को फंडे बनाना चाहते हैं अपनी मौजूदगी से, आपके चेहरों को हम रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो वेल, मैं पहले आई थी इस्लामाबाद फ्रॉम कराची और वहाँ पे एक न्यू ईयर का शो था बहरिया का, उसको होस्ट करना था। एंड देन आई थॉट टू हैव सम क्वालिटी टाइम, सो आई थॉट टू गो टू नथिया गली। वहाँ आई स्पेंड लाइक 3 days और मैं कल यहाँ पर आई क्योंकि मुझे लाहौर आना था और आपसे मिलना था। और यू लुक फैब इन ब्लैक, ब्लैक इज एवरग्रीन, इट्स माय हैप्पी कलर। एंड आप कैसे इतनी प्यारी लग सकती है? ये क्या है? मतलब ये मोहब्बत है। ये क्या हुमा, आप कितने अरसे से मुझे जानती हैं, आपने कभी मेरी एक फ्लो में बगैर सांस रोके इतनी तारीफ नहीं की। व्हाट इज दिस? ये क्या है ना? प्लीज बैठे आप। अच्छा, और मजे की बात बताऊं, ये मैं अब अगर क्लोजअप दिखा सकूं कार्ड का, इसमें मेरी राइटिंग भी नजर आएगी। इनके कार्ड के तारुफ के ऊपर ना रिज़्क की जगह रिज़्क लिखा हुआ। मैं परेशान कि मैं पिछले कितने सालों से रिज़्क को जानती हूँ, तो रिज़्क तो नाम है नहीं रिज़्क का। हाँ। तो आपका नाम जो है रिज़्क। देखिए, अगर ये इंग्लिश वाला रिस्क है तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। नहीं, उर्दू वाला ही है। और अगर ये उर्दू वाला रिस्क है तो इस रिस्क के पीछे पूरी दुनिया पागल है। छोटे छोटे। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान है, शी इज बेसिकली, इनका मैं जो फॉर्मल तारुफ है वो करा दूं कि सीईओ ऑफ लंदन कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एक्सटर्नल और सीईओ ऑफ हाईफील्ड कॉलेज क्वालिटी एश्योरर हैं। ब्रिटिश कॉलेजेस हैं ये सारे, लेकिन अगर आम और सादा जबान में बात की जाए तो जितनी बच्चियां और खवातीन हमारे घर में बैठी हैं, अगर वो, और हर लड़की का, इवन मेरा दिल करता है मैं प्यारी लगूं, खूबसूरत लगूं, अपना ख्याल कैसे रखा जा सकता है, क्या वो टिप्स हैं जिससे आप बेहतर खूबसूरत लग सकते हो मजीद और अपने फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं, सो शी इज द राइट पर्सन। तो जल्दी से बुलाएंगे डॉक्टर तलहा फैज को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। आई लव द मेडल्स, व्हाट वुड यू कॉल देम? ये मेडल्स हैं सारे? दिस इज द इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये जरूरी होते हैं लगाना? Whenever we have to go to inspection on our job, that's our uniform. बिल्कुल सही। अब्दुर्रहमान, आपके पास कितने मेडल्स हैं ऐसे? मैं बनवाता हूँ शालनी से लेता हूँ जाके। और वो ड्रामेस्टिक्स के होंगे, है ना? अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। भाई ऑल टाइम आपके फेवरेट हैं, भंगड़ा स्पेशलिस्ट हैं, और इनके जब गाने आप सुनते हैं शादी ब्याह और इस तरह की जो फेस्टिव तकारीब है उसका हिस्सा इनके गाने जरूर होते हैं। आप सबके बहुत ही फेवरेट, और बहुत सारे ऐसे गाने जो आज गाएंगे, जो पहला बल्कि सॉन्ग मुझे बताया जा रहा है कि वो गाएंगे, तो वो पहली मर्तबा आज हमारे शो के लिए खास तौर पे उन्होंने उसको लाइव परफॉर्म करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मजहर राही।
मजहर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, सुंदर साहब। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। प्लीज आइएगा और आपके बहुत सारे फैंस अब आपसे फरमाइश करेंगे और लाइव परफॉर्मेंसेज होगी। अच्छा जी, अगले मेहमान को ख़वातीन हज़रात, हमने कल भी यंगस्टर्स का प्रोग्राम किया था और वैसे भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करें, ब्रांच एट होम की बात करें, हमारी टीम की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम यंगस्टर्स को कोई टैलेंट भी उनके अंदर हो उसको प्रमोट करें और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो जो ये मेरी मेहमान शख्सियत है, शी इज़ अ यंगस्टर, मेडिकल की स्टूडेंट है, मेडिसिन कंप्लीट की, लेकिन सिंगिंग को परस्यू अब ये कर रही हैं। सो हमने कहा कि इनको इंकरेज किया जाए, इनसे जाने जाए इनके एम्बिशंस के बारे में। तो जल्दी से बुलाएंगे आयशा बेग को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आयशा? कैसी हैं आप? प्लीज बैठे आयशा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आयशा, वो क्या चीज उसको कहते हैं जो ये गले से निकाला होगा इन्होंने कांटा डॉक्टर ने? फोर्सेप यूज करते हैं मोस्टली। हाँ, फोर्सेप होगा तो वो खतरनाक होता है बहुत? नहीं, खतरनाक तो नहीं होता, बट ये कि वो हेल्प करता है क्योंकि इसके अलावा और इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अच्छा, और इंस्ट्रूमेंट तो फोर्सेप करना पड़ गया नहीं, बट इट्स वेरी पेनफुल, बट ये कि उसके बगैर निकल नहीं सकता। उसके बगैर निकल नहीं सकता। रिज, आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? लेकिन मेरी मम्मी के साथ हुआ था। अच्छा। हम लोग अबू धाबी से आए थे, वेकेशंस पे थे, तो मुझे याद है मैं छोटी थी। एक्चुअली होता ये कि कांटा कहते हैं गले में कोई चीज रुकती नहीं है, वो चली जाती है, बट आपको खराश आ जाती है, तो यू फील लाइक दैट यू हैव समथिंग। तो वो एक मेंटली साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है। हो सकता है आपके बाकी फंसा हुआ हो। रोटियां खाता रहा कि चलो है ना, सूखी डब रोटी कहते हैं या सूखी रोटी खा लो कि वो एकदम से जो आपका वो कर ले, लेकिन नहीं हुआ। 2-3 नान खा के ऐसी चक्कर में आप वैसे ही मुझे लगता है कि खाने के बहुत दुश्मन खाना नहीं छोड़ता है ना, और खाना आपको नहीं छोड़ता। खाना एक ही नहीं खाने के। नहीं, बट यू गेन वेट, लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। आप जिम वगैरह करें, कितना टाइम हो गया जिम करते हुए आप? 15 दिन जाता हूँ, फिर 15 दिन खाता हूँ टिका के। मतलब सांस रोक के बैठा हूँ। सांस रोक के बैठे। मुझे वैसे बचपन से शौक है जॉगिंग वगैरह और साइकिलिंग, और जिम कम जाता था, स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन अब जरा शुरू कर दिया। तो आपके हालात से पहले तो लगता भी था कि आपको शौक होगा कहीं से भी, तो एकदम मैं जरा ढीले ढीले कपड़े पहनता था, आज बिगर में टाइट तरह पहनवा दिए। अच्छा जी, मजहर आपको तो नहीं कोई घर में कहता कि कपड़े ऐसे पहनो ऐसे पहनो? जो दिल में आते पहन लेते हैं, लेकिन फिर होता है लेकिन फिर सिंगर ऑब्वियसली तो फिर ऑब्वियसली एक इमेज होता है, उस इमेज को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो फिर तो आप अपनी पहले नहीं करता था, अब शुरू हो गया हूँ ज्यादा। कपड़ों तक जाता कौन है? आपकी तो मुझों पे ही सब टिक जाते होंगे, जो ये ताऊ वाली मुझे है। मैं यही चाह रहा था कि जो रेज है ये इस पे आए। अच्छा, लेकिन मजहर आपके सॉन्ग्स की अगर हम बात करें, बड़े फेस्टिव गाने आपके होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एक से एक बढ़कर गाना होता है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है सारा? सुंदर से मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे मेरा काम, मेरे सॉन्ग दूसरों से बेहतर ना हो, लेकिन उनसे मिले ना, एक हट के हो, जो मैं काम करूँ वो हट के हो। और फिर मैं आप जो इर्द गिर्द के हमारा माहौल होता है, हम यार दोस्त बैठे होते हैं या कहीं से मुझे कोई टॉपिक मिलता है, मैं अच्छा लगता है, मैं उसको ले लेता हूँ, यार ये टॉपिक अच्छा है, ये बात अच्छी की है फलां ने, अब हो सकता है मैं यहाँ से भी अच्छी बात हो, यहाँ से भी ले लूँ, पिक कर लूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर जो टॉपिक डिस्कस हो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, उसको लेकिन जैसे अभी टिकटॉक बहुत ज्यादा वो हो रहा है। बिल्कुल तो सही। टिकटॉक पे भी आपने गाना बनाया? अभी जो पहला गाना हम करेंगे वो लॉन्च में करने जा रहा हूँ, वो टिकटॉक ही है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर इससे पहले कि हम परफॉर्मेंस की तरफ आपकी, बल्कि यही गाना आप सुनाएंगे सबसे पहले, उससे पहले आयशा जल्दी से आपसे बात करूँ, कैसा लग रहा है सिंगिंग के अंदर आके, मेडिकल स्टूडेंट एंड इसको परस्यू टोटली डिफरेंट थिंग्स? यस, ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, बट ये कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये चीजें मेंटेन करना, और लेकिन ये कि सिंगिंग एक ऐसा पैशन है कि म्यूजिक हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको आगे किस तरीके से लेकर चलते हैं। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने 5 हिस्से बनाए हैं, लेकिन म्यूजिक जो है ना वो 6ठी हिस्सा उजागर कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो इसको एंजॉय करते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपने पहले लेकिन पढ़ाई मुकम्मल की, दैट इज अ गुड थिंग। और वही जो कल हम बात खवातीन के साथ कर रहे थे कि अब्दुर्रहमान पढ़ाई पहले मुकम्मल डॉक्टर साहिबा कर लें, उसके बाद आपने जो भी परस्यू करना है करें। अच्छा जी, टिकटॉक आप करते हैं कि नहीं अब्दुर्रहमान? नहीं,
बड़ा ढीला मामला है। नहीं तो क्या वजह सोशल मीडिया में मुझसे हो नहीं रहा, मैं जरा व्हाट अबाउट यू, आप करती हैं? क्योंकि मुझे जरा नहीं इल्म टिकटॉक का, इतना मैं हूँ नहीं, तो मुझे आप बताएंगी तो मुझे समझ आएगी कि क्या नहीं, मैं इतनी फ्रिक्वेंट यूजर नहीं हूँ टिकटॉक की। मुझे बोला था मेरे कुछ लिस्टनर्स जो मेरे रेडियो के हैं, जो फैंस हैं, कि मेक टिकटॉक आईडी एंड वी वांट टू सी यू लाइक ऑन टिकटॉक टू। तो मुझे बल्कि लाहौर में एक हमारे आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे बना के दिया टिकटॉक आईडी कि जी आप करो, बनाओ वीडियो। ठीक है, कभी शुगल में बना लिया, मैं मेंटेन नहीं रखती उससे। आई एम लाइक इंस्टाग्राम यूजर और फेसबुक। सबसे पहले मैं ही आपका टिकटॉक देखा था। आपने देखा था? और क्या? बस देखिए, ये मोहब्बत है। आपने इतनी मोहब्बत आपके सुंदर के साथ बांटी, तो मैंने कहा हम क्यों बांटे आपके साथ। अच्छा जी, अब हम एक पाव आपके लिए। हाँ, अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूँ, डॉक्टर सलाह भी मौजूद हैं, उनसे आप सवालात करना चाहें कि कैसे खूबसूरत लग सकते हैं, कोई टिप्स लेना चाहिए, यू मोर देन वेलकम। लेकिन उससे पहले हम मजर आपके गाने की तरफ बढ़ेंगे। अब टिकटॉक की बात हो रही तो पहला आपका गाना है, बहुत सारी क्लैप में आ जाइए।
जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, पहले से आ जाते हैं। नाम शामिल करूंगी, राना वसीम है, अजमल है, सलीम रमाना है, मोहम्मद सदीक है, सुजैन अवान है, हसन वाइन कहेंगे वाइन है, अली सुफियान है, मोहम्मद आसिफ है, सैयद हसीब अहमद है। आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। मगर आप ना ऐनक उतार दे, मुझे ना समझ नहीं आ रही आप किसकी तरफ देख रहे हैं, ताकि ना जरा समझ भी है। हाँ, वो मैच करके मतलब कोशिश करके, क्योंकि आपने ऑफ एयर उतारी ना, तो ऑन एयर आपके साथ पैन भी अचानक से बर्गर से बनकर बाप निकला। नहीं, मैं तो इसलिए कि हर सिंगर का अपना स्टाइल। मैं ना पूरी टोरंटो ढूंढा पूरा सिटी जाकर, फिर भी मुझे मैच कोई वो लेकर ये आए, नहीं क्लासेस और आप, लेकिन चले अब आप पहन ले, अब कोई मसला नहीं, अब पहन मैंने उतार दिया। अच्छा जी, मुनव्वर हुसैन है जी, सलाम टू ऑल, और खास तौर पे जी आप सबको सलाम पेश करें। मगर आपके लिए बहुत फरमाइशें आ रही हैं, कुछ लाइव सिंगिंग भी हम करेंगे। नासिर बशीर हैं जी, उन्होंने कहा है कि सबको सलाम पेश किया, और कहा है अहमद अब्दुर्रहमान से सवाल ये है कि आप एक्टिंग में तो बड़े फनी रोल्स करते हैं, आम जिंदगी में भी इसी तरह फनी है? बहुत संजीदा सड़ियल टाइप की हूँ आम जिंदगी में। ये भी एक जोक है, ये अब्दुर्रहमान खिजू का है ना? अच्छा, इनसे कहीं कोई जोक सुनाए रे? हाँ वाकई देखो, नहीं मैंने तो सुना है कि जुगत बहुत अच्छी होती है, नॉट लाहौरियों की, बट कहाँ की किसी और कोई और शहर। अच्छा, बात सुनाए, जोक सुनाए, चले जोक इस तरह नहीं, कोई बात चल रही है और बीच में से मैं निकाल लेता हूँ एक तबानाई वाला जोक आता है। आप बेगम के साथ क्या करते हैं, किस तरीके से? बेगम कहती है बहुत ही नॉन फनी इंसान और एक सड़ियल आदमी हो, मैंने गलती कर दी। बेगम कहती है बुरी वाली जुगत हुई है ये मेरे साथ, उसको नहीं मेरे जोक समझ में आते, और मैं अपनी तरफ से बड़ा हैवी जोक मार के ऐसे दाद तलब में गाँव से देखता हूँ उसको, ठीक है, तो से कहती क्या उनको मजा आता है, करती है, लेकिन वो कहती है आप ज्यादा ओवर न हो रहे। थोड़ा सा तो ओवर कर रहे हैं बिल्कुल। बेग में ये आती है हर घर की कहानी, हर घर की कहानी आपके साथ भी यही है। आप जो करते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मजा बड़ा। मैं करता हूँ वो नहीं मानती मेरी बात, तो गाना ही समझ नहीं आता, ये क्या करते हैं और काम करें, मैंने कहा क्यों मदर? अच्छा, आपका तो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो कैसे यानी जोक्स वोक्स करते हैं घर के अंदर, कैसा माहौल होता है? नहीं, मुझे अक्सर पता नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता, जैसे दोस्त या वो कहते हैं आप सिंगिंग छोड़ें या जॉब शो किया करें, मैंने कहा यार मैं तो ऐसे हूँ। अच्छा, कंप्लीट पैकेज है ना, मतलब हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। स्टेज के ऊपर परफॉर्म मजर बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर तलहा मौजूद हैं भाई, आपकी बेगमात और जितनी बच्चियां और खवातीन देख रही हैं, उनको आप अगर स्किन का, डॉक्टर साहब खूबसूरती की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज रिज भी आई एम श्योर अग्री करेंगी, अच्छी स्किन। और अब स्किन अच्छी नहीं है तो ना मेकअप अच्छा लगेगा ना स्टाइलिंग। अच्छी स्किन रखने के लिए क्या करना चाहिए बच्चियों को? Certainly, first of all, lifestyle changes करनी है, healthy eating करनी है, water intake ज़्यादा लेनी है, sunblock application is really important, ठीक है, because it's a hot part of the country, तो यहाँ पे sun UV rays, A rays and D rays बहुत ज़्यादा है, sunburn हो सकता है, hyperpigmentation बहुत ज़्यादा है लोगों में यहाँ पर, even skin tones नहीं है यहाँ पर, तो आपको healthy lifestyle करना है, cleanse करना, moisturize टॉन करना है, और SPF एप्लीकेशन इज रियली ठीक है। अच्छा, पानी इंटेक कितना रोज करना है? मिनिमम। सर्दियों में भी 2 लीटर? 2 लीटर को डिटॉक्सिफाई, आपका एक लिम्फेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी वो सारे टॉक्सिन ब्लॉक करेंगे आपकी स्किन को, आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी, नथिंग विल लुक नाइस। 8 से 12 ग्लास यानी डेली चाहिए सर्दियों में, बिल्कुल सही। और जो आप सन रॉक इस्तेमाल करते हैं उसके SPF 50+, ओके, यानी वो बॉटल पे पीछे लिखा हुआ होता है SPF 50+, और उसके ऊपर आप अपनी बेस वगैरह और मेकअप कर दिया करें। बिल्कुल, कुछ फाउंडेशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर ऑलरेडी SPF एडेड होता है, ठीक है, सो देन यू डू नॉट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, but always because there is a misperception about people, SPF means you apply 50 once, एक दफा करेंगे तो दोबारा नहीं अप्लाई करना, ठीक है, 3 घंटे के बाद SPF 50 दोबारा से रीअप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। आपको इनकी हालत से और हालात से लगते इतनी अफसोस क्यों आपकी शक्ल? मैं आपसे गिला करना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ बच्चियों की बात की, ये स्किन नहीं होती क्या? मतलब आजकल तो मेल ज्यादा बार्बर शॉप पे जाते हैं, अगर आप चांदरात पे जाएं तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके मेल डॉक्टर साहब इनके क्या हालात कहते हैं? इनको SPF क्या करते हैं? पी के पानी का दूध ही बन जाता हूँ, सब करता हूँ जी जी। स्किन मेरी देखने अब जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके इंटरनल रीजंस भी होते हैं ना, आप आयरन डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई लिवर मेल फंक्शन है, फीमेल्स में भी और मेल्स में स्पेशली। अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ आप SPF एप्लीकेशन में कितना रेगुलर है,
आप हर 3 घंटे के बाद SPF 50 अप्लाई एक करते हैं? सेकंड डॉक्टर साहबा, SPF होता क्या है? मैं सीरियसली ब्लैंक चेक आपको दे दूंगी साइन करके, अगर आपने बता दिया साइन करके साइन SPF, और पीछे भी 2 साइन करूंगी, जल्दी से बताएं SPF क्या होता है? रिस्क आप सन विजन प्रोटेक्शन फैक्टर सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओह मैं इधर आती हूँ। ओह नहीं अब चेक देना पड़ेगा। कोई बुला नहीं रहा, क्लैप हो जाएगी है ना मेरे लिए तो। मैं जरा आ रही हूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे बुला रहे हैं, तो आप तब तक शो करे हैं। नहीं मैं कभी कभार ना बैकी बातें कर जाती हूँ, लेकिन अमाउंट कितना लिखना है ये तो नहीं आपने कहा। एनी अमाउंट अब क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। कितनी ब्लैंक चेक 10 मगर बताएं कितने का चेक इनको दिया जाए, जल्दी से बताएं। जितना SPF 40% आपका क्या होगा? डील हो रही है आपके सामने। हाँ सबके सामने होगा, गवाह मेरे पास तो एक पेटी का मिलना चाहिए आपको। फिर एक पेटी हम तो खोगे नहीं, इतना मिल गया बहुत बड़ी बात है। बहुत पेटियां पड़ी हुई है, खाली दे दूंगा। आपकी बेटियां, किन्हों की बेटियां? मेरे घर में कल गांव से जो है ना माल्टे की पेटियां आई हैं, वो आपको मैं 4 दे देती हूँ। सब कल हो रहा था, कल मछली पकी, कल पेटियां आई, आज क्या है हमारे पास? अच्छा जी, नहीं आज आप हुमा कोल्ड कॉफी तो आपने सर्व कर दी, क्या कुछ है और जल्दी से बता दें। गुस्से में लग रही है आज। आप बार बार मेरी तरफ ना आए, हमें उम्मीद है आप चेक दे दें, बाउंस हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि इनको पता मेरे साइन का मसला रहता है हमेशा। वेरी गुड हुमा, आपको मैं साइन का मसला नहीं, पिछले साल वाले काफी चेक्स हैं, हाँ। तो इस साल भी उम्मीद। अच्छा मजे की बात है, कितने मजे की बात। मैंने ऐसे ही कहा ना, हमारा जो 2019 का था शो, तो मैंने कहा जी अब 1 साल बाद मुलाकात होगी, यानी लास्ट शो था। मैंने कहा तो मैंने जिनको चेक्स लिख के दिए होंगे वो भी बाउंस हो जाएंगे। उस पर लिटरली मुझे कुछ 3-4 लोगों के इकबाल भाई फोन है कि आपने हमें चेक लिख के दिए, बाउंस हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब अगर नहीं भी होने हो तो मैं फोन करके कहूंगी इनके कैश ना हो, तो वो बात सीरियसली लेनी बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली। अच्छा जी, कोल्ड कॉफी कैसी लगी आपको? अच्छी है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। आयशा व्हाट अबाउट यू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब्दुर्रहमान बहुत नाइस है ना, मजे की ये कोल्ड कॉफी बताए रहते हैं। और वैसे कोल्ड कॉफी है, लेकिन मैंने उसके अंदर आइस ऐड नहीं की थी, और ना ही दूध इतना चिल्ड इस्तेमाल किया था, क्योंकि सीजन थोड़ा सा चेंज है। और कोल्ड कॉफी के लिए मैंने वनीला आइसक्रीम ली थी, दूध लिया था, कॉफी पाउडर जो होता है इंस्टेंट वो लिया था, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और शुगर अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डाल लें, अदरवाइज वनीला आइसक्रीम काफ़ी मीठी होती है ऑलरेडी। और उसके साथ जो है थोड़ी सी गार्निशिंग कर लीजिए आप चॉकलेट सिरप की, और उसको सर्व किया। बेसिक इंग्रेडिएंट तो आपने बताया नहीं, अनाउंस नहीं किया। मैंने कॉफी नहीं डालें, आपका प्यार, उनसीयत, चाहत। हुमा ये क्या है, आप डोई मारी जा रही है हांडी में, ये क्या है? वेरी गुड। अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं, ये कोल्ड कॉफी अगर आप बाहर जाए आराम से आपके अच्छे खासे पैसे लग जाए, 500 रुपए से कम तो आपका कभी भी ना लगे, और आपको यानी समझ भी नहीं आएगी, और वो इतने से ग्लास के अंदर। तो ये आप सोचें घर बैठे इतने कम अमाउंट के अंदर आप बना सकते हैं, तो इसको जरूर बनाइएगा। अच्छा जी, मैसेज आया कि आते ले आइएगा कॉफी। नहीं तो आप उनको बाहर क्यों नहीं लेके जाते? किसी मिल रही है, इसमें प्यार भी मिला हुआ है, तो वो उनका प्यार है, आपका नहीं है प्यार। उनको आपका प्यार चाहिए। यस, खुद बना के दीजिए, और फिर ये वाली उंगली मिक्स करके। यस, अच्छा जी, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान से स्टार्ट करेंगे। मुहावरे, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, टर्न बाय टर्न होगा। आपने वो पिक्चर देख के लफ्ज पकड़ के, यानी चांद की अगर तस्वीर है या सितारे की तस्वीर है, तो कोई ऐसा मुहावरा जिसमें लफ्ज सितारा आता हो या चांद आता हो, या कोई ऐसा शेर जिसमें लफ्ज आता हो। गाना नहीं होना चाहिए, फिल्म का डायलॉग ना हो, और अगर डायलॉग आता है तो फिर एक्ट आउट करके दिखाना है, ठीक है जी। एंड फिल्म का नाम नहीं होना चाहिए। दिखाएं अब्दुर्रहमान के लिए पिक्चर जल्दी से। बिल्कुल जी, और किसी को काम से रिलेटेड आता होगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट जी। अच्छा, आपका सांप से कभी इनकाउंटर हुआ? मुझे लोग कहते हैं प्यार से स्नेक। ये कोई अच्छी बात क्यों कहते हैं? नहीं, ये प्यार कैसा प्यार है, सांप आपको कहेंगे लोग? बस मेरी स्किन जरा स्नेक टाइप हो गई है। इसमें टीवी में मुहावरा बनता है कि हाथी पाले सफा को डस सके। ये है मुहावरा? हाँ, चलिए, अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब रेज आपकी बारी है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल चुका है जी। दिखाएं रेज के लिए तस्वीर अब। सुबह, सुबह, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं। एक्सेलेंट, वेल डन, एक्सेलेंट जी। डॉक्टर साहबा, आर यू रेडी?
आई एम श्योर थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपकी हम हेल्प कर देंगे, ठीक है जी। अदरवाइज आप इंग्लिश में भी बता सकती हैं गुस्ताख जी। दिखाएं तस्वीर। ओह, छुरी, डैगर हो सकता है इंग्लिश के अंदर। कोई ऐसा मुहावरा यानी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी से रिलेटेड? नहीं, छुरी का वर्ड आना चाहिए। वर्ड छुरी आना चाहिए। मुंह पे हाथ से मुंह पे हाथ से हंसी और बगल में छुरा। है बगल में छुरा क्या? नहीं, एक रुके, म्यूजिक बंद। क्या कहा आपने? मुंह पे हंसी और बगल में छुरा। बगल में छुरी, मुंह में राम। बगल में छुरी। अच्छा, ये इनकी चेक बुक निकालिएगा जरा। बगल बगल में छुरी है। नहीं, मुंह पे राम राम और नहीं, वो बगल में बड़ा छुरा। स्पेसिफिक जिसमें छुरी आया वो ये मीठी छुरी मीठी जो हम छुरी। कहते हैं। ये भी नहीं, है। मैं अभी उनकी उसके ऊपर हूँ, आपका तो हो गया। क्या आपने कहा था मुहावरा? मुंह तो पंजाबी दसा, मुंह से हंसते हाथे बगल छुरा। नहीं है ये मुहावरा। और चले ये कब बना है? मैंने बना दिया। अभी भी बना। अभी ये है मुहावरा। मुंह में छुरी बगल में राम राम, तो मैंने सुना है ये। और रिस्क के लिए पॉइंट बगल में छुरी मुंह में राम राम। हाँ, ये आधा पॉइंट आपको दे रही हूँ। अगर तो ये है पंजाबी में मुहावरा तो पॉइंट मिल रहा है, मैंने नहीं ये सुना। चलेगी, चले आपकी कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मुझे यकीन आ गया कि ये है। एक और याद आ गया, छुरी तले सांस तो ले लो। छुरी के नीचे सांस तो लो, यानी कि इतनी जल्दी क्या है हर चीज। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। भाई देखिए खवातीन हज़रात, मैं भी इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखी हुई, कुछ नए मुहावरे मेरे लिए भी। मज़र, अब आप रेडी हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट तो आपको आधा मिला है जी। दिखाएं तस्वीर अब जी। चांद, चांदनी, आसमान कर लें, रात कर लें, तारे कर लें, आसमान कर लें, आसमान से हीरा के जूनियर। एक्सेलेंट। और किसी को आसमान से रिलेटेड आता हो? ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर बता दिया बस ये क्या बात है? ये पॉइंट मेरी आ गई। ਤੁਹਾਡੀ बारी है, तुसी दसो। मैं दस पे है ही मैं अच्छा चले, आपको पॉइंट मिल अगर मैं बताता ये बताता। याद। तारे गिनना भी एक होता है। तारे गिनना होता है। चांद चेहरा सितारा आंखें। मेरा गहरी बात कर थैंक यू। चांद में दाग। नहीं, ये चांद में दाग तो चांद में दाग मतलब मुहावरा नहीं है, मतलब लेकिन उसको यूज कर सकते हैं, करते हैं लोग। अच्छा जी, माशा के लिए दिखाइएगा तस्वीर जी। जी किसी व्हाट्सएप की तस्वीर दिखाएंगे? ये ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं अगर इसको देख के मुख्तर जानवर का। हाँ चले ये। हाय और अब्बा मैं कितने जामा गुड़ खा के। अच्छा जी, नाखून नाखून नाखून, बिल्ली के नाखून, समथिंग गंजा सर खुजाना, समथिंग बड़ा कुछ है, आप समझे ये। होश के नाखून। बिल्कुल एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। ये भी है डॉक्टर के नाम, लेकिन मैं कुछ और कह रही हूँ। खरगोश के नाखून। खरगोश के नाखून? होश के नाखून। होश के है। खरगोश है या होश है? होश के नाखून बेसिकली वो खरगोश का होश और होश के पे नाखून। अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। हाँ, मैंने बोला था गंजे के नाखून। आपको हिंट दे रही थी गंजा नाखून समथिंग, पर आप नहीं समझे। एक तो मुझे कौन है विनर, प्लीज मुझे बता दे। सबसे पहले तो मैं, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर वो, फिर सारे विनर। डॉक्टर साहब ने कह दी, मैंने भी कह दी, मैं 2 बार हो गया। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ना बात। आयशा के अलावा, आयशा के अलावा सब विनर हैं, लेकिन आयशा हार के जीतने वाले को भी कुछ कहते हैं बाजीगर। अच्छा, मैं समझा मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। हम अगले सेगमेंट में ये फैसला करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, लेकिन चूंकि एक चीज में आप विनर हैं और वो है सिंगिंग, और वो आपका पैशन है, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को हमने आपको दिया है ताकि आप अपनी सिंगिंग का मुजाहरा करें। तो बहुत सारी क्लैप में कौन सा गाना सुनाएंगी? आई मौसम रगीले सुहाने, एक्सेलेंट। जो कि सदाबहार हर किसी को पसंद है और हर मौसम में जो है हर स्टाइल आ जाए बहुत सारी क्लैप में। माइक
welcome back once again and भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आयशा की, कैसी लगी सबको? वेरी मजा क्योंकि मेरा मैं सिंगिंग बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ना, और खासकर इनकी जो आवाज है ना, सुर भी है इसमें, ताल भी है और इसमें एक सोच भी है, बिल्कुल जो होना चाहिए सिंगिंग में, बहुत ज्यादा ये जरूरी होती है। बिल्कुल, और इसीलिए खवातीनों का हमने कल भी अनाउंस किया था, पहले भी ऑब्वियसली हम यंगस्टर्स को प्रमोट और उनके टैलेंट को असल में प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आपके अंदर किसी किस्म का पेंटिंग का टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, शेर व शायरी से आपको शौक हो, लगाव हो, एक्टिंग का शौक हो, सिंगिंग का हो, तो हमसे राब्ता जरूर करें, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। अच्छा मुझे ना एक बात यहाँ, सॉरी टू कट यू, मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी। मैं क्योंकि होस्टिंग करती हूँ, लाइव शोज यहाँ भी किए हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका में भी किए हैं, तो मैंने कॉन्सर्ट्स में देखा फीमेल सिंगर्स जो हमारी होती हैं, जो नई हैं, वो थोड़ा सा हेजिटेट करने लगती हैं। जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं, स्पेशली 8-10 हज़ार लोग आपके सामने होते हैं, तो आपको सिर्फ गाना नहीं गाना होता, गाना तो वो MP3 MP4 पे भी सुन सकते हैं ना, आपको उन्हें उनके साथ जैलिन करना पड़ता है, आपको स्माइल करना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। सो द वे शी जस्ट परफॉर्म्ड, इन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी दिया, हल्का सा स्टेप भी किया, डांस का, स्माइलिंग फेस था, सो दिस एक्चुअली काउंट्स, इट्स अ कंप्लीट पैकेज।
बास्केट, हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत एक्सेलेंट, हैट्स ऑफ भाई, इसी तरह आप कंटिन्यू करें, अच्छा काम करें। अच्छा जी, बिनते हवा है, नियाज जमील है, इरफान अली है, नाज़ी मलिक है, मलिक इमरान, अदनान सईद, फैजान नफीस, सितारा अमन और जॉन नकवी हैं। आप सबको सलाम पेश करें। अच्छा जी, मैरी खान है, सलाम टू ऑल गेस्ट। और रिज आपकी फैन है, बहुत प्यारी लग रही है, कह रही हैं। और रिज कमाली से रिक्वेस्ट है कि वो एक सांस में काफी लंबा बोलती हैं, वो काइंडली कुछ बोल दें। ऐसा मैं एक सांस में क्या बोलूं, क्या सुनना चाहती हैं आप, क्या जानना चाहती हैं? संडे है, फंडे है, मेक इट अ गुड डे। एंड इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, हमें देखती रहे, सुंदर को देखती रहे, पीटीवी होम को देखती रहे, कुछ खाती रहे, पीती रहे, इनको देखिए, इनके बारे में कुछ कहिए। ये जो छोटी सी पोनी बना के आए, थोड़ा सा साइड पोज दीजिए, प्रोफाइल शॉट दीजिए, यस दिस इट लुक्स रियली क्यूट ऑन हिम। और मेरे साथ इतनी प्यारी ग्रेसफुल लेडी बैठी हुई है इन ब्लैक, एंड ऑफ कोर्स सुंदर का ब्लैक तो आज बहुत जच रहा है। हैप्पी कलर इज माई ब्लैक कलर, बट मैं क्या करूँ, मुझे ब्लैक मिला नहीं, तो मेरी जगह सुंदर ने वेयर कर दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबको ब्लैक में देख के। इनकी मूंछों पे जो ये खूबसूरती है, जो मूंछों का ताव उन्होंने दिया है ऐसे करके, एंड देन फ्लावर जैकेट एंड देन व्हाइट कॉम्बिनेशन, उसके बाद कैसे दूर इसमें आप। बड़ी मेहरबानी, पानी पी ले प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हुमा ने सर्व भी किए ड्रम स्टिक्स, कैसी लगी डॉक्टर सलाह बताइएगा। वेरी नाइस। मुझे मेरे तो कपड़ों को भी अच्छे लगेंगे। हाँ, वो आपको जरूरत नहीं थी बताने की, वो कवर हुआ था, लेकिन नहीं, मजे की चीज। बहुत अच्छा हुमा का काम मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, किचन में हम जा सकते हैं। हुमा रेसिपी बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, जो ड्रम स्टिक्स, मिनी ड्रम स्टिक्स से विंग्स थे, उसको मैंने फ्राई कर लिया था कॉर्नफ्लोर और अंडा सॉल्ट लगा के। उसके बाद जो सॉस मैंने उसकी बनाई है वो बारबेक्यू हनी सॉस बनाई है। थोड़ा सा गार्लिक लिया था, बटर में मैंने उसको सौते किया था, जब वो ब्राउन होने लगा था तो उसके अंदर मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की थी, हनी ऐड किया था, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड की थी, शुगर थोड़ी सी उसके अंदर ऐड करनी है अगर आपके पास हनी नहीं है तो, और उसको टॉस कीजिए विंग्स के अंदर जो ऑलरेडी फ्राई कर दिए थे मैंने, टॉस करके थोड़ा सा सफेद तिल सेसमी वो ऐड किए थे, साथ में हरी प्याज के साथ गार्निश किया, उसको सर्व किया। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हैं अदला, सॉरी हुमा, ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली अब दिखाइए प्लीज, आ जाए, ये खा चुके हैं, ये देखिए आप नहीं खुद खाया जी नहीं, ये खा चुके हैं, अपनी ड्रामेस्टिक्स का काम तमाम कर चुके हैं, राइट। उसके बाद मुझसे कह रहे जैसे कि स्कूल में नहीं कहते रिसेस में, ब्रेक में, कि हमें दे दो अपना लंच प्लीज, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे उन्होंने ये मुझसे मेरी प्लेट छीन ली, मुझे खाने नहीं दिया। और डॉक्टर तलहा को भी कहा, डॉक्टर तलहा बेचारी कह रही है प्लीज आप मेरी प्लेट ले लो, कह रही है प्लीज अब मेरी ड्रामेस्टिक्स आपको और डाल के देते, आजे अच्छा खासा तो मैं बताइए आज तकल्लुफ की क्या जरूरत है, आज हो गई जरूरत। अच्छा प्लेट भी लिया ना, प्लेट अच्छा सुंदर, इसके बाद जो है मैं कैशनट चिकन बना रही हूँ, और कैशनट चिकन के लिए चिकन भी मैंने स्लाइसेस में काट के कॉर्नफ्लोर अंडा और सॉल्ट के साथ मैंने उसको फ्राई कर लिया स्लाइसेस में कटे हुए। सॉस बनाएंगे जी, सॉस के लिए गार्लिक थोड़ा सा सौते करूंगी ऑयल के अंदर, उसके अंदर चिली पेस्ट जो कि मैंने खुद बनाई है, जो होल चिली होती है गोल वाली, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इसको गार्निश करें मेरे हाथ, क्योंकि मैंने इसको बॉईल कर लिया और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। उसमें चिली पेस्ट बन गई थी, चिली पेस्ट ऐड करेंगे, जो गार्लिक सोते करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा इमली ऐड करेंगे, थोड़ी सी टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा केचप, सोया सॉस, ऑयस्टर ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, सॉस बना लेंगे, चिकन को टॉस करेंगे, और लास्ट पे जो है कैशनट्स काजू जो है वो गार्निश करेंगे और एक साइड ऐड। सॉरी मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, वो उधर रिज आपका हम अच्छा कुछ नहीं, प्लीज आ जाए प्लीज आ जाए, क्योंकि रिज इतनी सिल हुई हुई है कि रिज आप आ ही जाती, इससे बेहतर था, प्लीज आ जाए। चलिए। अच्छा, हाँ मैंने कहा मैं इनकी और ड्रामेस्टिक्स के बीच में ना आओ। नहीं मैं इसमें रुक गई, है ना, देखा ड्रामेस्टिक्स भी बेताब है कि आप जल्दी से खाएं। अच्छा आपने अपनी बेगम के लिए कभी कुछ बनाया कि नहीं, ये बताइए, खाने को कभी एफर्ट की किचन के अंदर? टोस्ट कर लेता हूँ, ब्रेड या इस तरह ही है। उल्लू बनाने के अलावा कभी कुछ और बनाया हो? चाय बना लेते हैं, अंडा उबाल लेते हैं, ऑमलेट बना लेते हैं। हाँ, अंडा मैं सूजी का अंडा बना लेता हूँ। अच्छा वाकई में? लेकिन खाती नहीं हूँ, फिर मेरे खाना पड़ता है। क्यों नहीं खाती होंगे ना? उसको नहीं खाने से चीजें। मतलब व्हाट अबाउट यू, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो किस तरीके? बिल्कुल मैं कर लेता हूँ, तकरीबन सारी चीजें बना लेता हूँ मैं। अच्छा वाकई में? हाँ सीरियस। इसलिए कि टूर्स पे जाते हैं तो इसलिए खुद उधर भी करना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल। अभी मैं कनाडा में था 2 मंथ पहले, तो जब मेरे शोज खत्म हुए ना, 4-5 इकट्ठे शोज थे मुख्तलिफ सिटीज में, तो अब मैंने कुछ वीडियो शूट करने थे, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मुझे जो प्रोड्यूसर मेरा प्रमोटर कहते हैं कि मतलब आप होटल में रहना पसंद करेंगे, या मैंने कहा होटल में नहीं, मुझे कुछ ख्याल दे दो, उसमें रहूँगा। मैं खुद बनाता तो खुद खाता था।
और मजेदार, बल्कि उनको बुलाता था कभी कभी, आज आज वो खाओ आप। अच्छा, वेरी अच्छा, मेल मैंने देखा है ज्यादातर कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, कढ़ाई भी और बिरयानी भी, सिंधी बिरयानी वगैरह सारे होना। कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। आई लव डूइंग कुकिंग, मुझे बहुत मजा आता है। और बल्कि मैंने तो बेकिंग क्लासेस भी ली थी, मैं बहुत अच्छी कुकीज, ब्राउनीज एंड पिज्जाज बनाती थी। फिर अब नहीं बनाती, लेकिन जो नॉर्मल कुकिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ, सिवाय एक चीज के जो कि मेन चीज है जो बनानी सबसे पहले आनी चाहिए, वो मैं नहीं बनाती। रोटी। यस, हाँ, रोटी का मसला ये गोल होना बहुत जरूरी है। तो फिर लड़की को समझ में आती है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लड़की गोल लड़की गोल रोटी गोल। इतना बुरा टेस्ट था आपका, लड़की गोल चाहिए आपको। अच्छा, घर जाना या नहीं जाना आज? यस, आई लव कुकिंग। और गोल रोटी बना लेती है? बिल्कुल। क्या टिप क्या गोल रोटी बनाने की? बस ये कि गोल बन जाती है बस। नहीं, कैसे पेड़ा पकड़ा फिर आपने उसको इस तरह किया? बिल्कुल, और इसी तरह बस इसको बेल कर बड़ा अच्छा वो बन जाता है। वो तो बड़ा आसानी से भी गोल बन सकती है, लेकिन लेकिन मेरी मदर गोल रोटी हैविंग अ गुड आटा। Excellent, हाँ। वो अगर पेड़ा आटा अच्छा गूंदा हुआ होना तो रोटी बहुत सॉफ्ट और अच्छी और फूली भी बनती है। और बाकी गोल के लिए तो आप पहले बना लो मैप किसी भी कंट्री का, उसके बाद उससे कटोरा रखो, उसको साइड से निकाल लो। बुरी नहीं। और मैं बस नाज़रीन ये बात बताऊं, जो बच्चियां हैं ना जो कहती हैं हमें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, ये कोई बहुत फख्र की बात नहीं है। बच्चियों की पर्सनालिटी का ये हिस्सा, दिस इज वन ऑफ आई थिंक इक्वालिटी होगी कि बच्चियों को, लड़कियों को आपको कुकिंग जरूर सिखानी चाहिए। वो अलग बात है आप बनाए ना बनाए, लेकिन ये आपकी शख्सियत के लिए, लड़की के लिए बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ जरूरी नहीं कुकिंग करूं, लेकिन मुझे आती है जरूर। हाँ, नहीं, मैं गई थी लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में, मैं अमेरिका में थी, तो वहाँ मैंने ह्यूस्टन में एक लोकल चैनल ज्वाइन किया था एज आर्ज। ठीक है। तो मैं वहाँ पे रहती थी, शुगर लैंड में अपार्टमेंट था, अकेली रहती थी। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि मेड्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने घर का बिन भी खुद साफ किया, गार्बेज किया। होना चाहिए। हाँ, सीरियसली, सारी कुकिंग मैंने खुद में करती थी, अपना काम भी करती थी, कुकिंग भी करती थी, मतलब मॉप भी करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन इट वाज लाइक सो नीट एंड क्लीन, एंड आप जब अकेले होते हैं, आपको पता होता है नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, और देन यू डू योर ओन वर्क। ऐसा ही। और आपको वो एक्टिव रखता है वो सारा काम। और आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, वेस्ट में तो आप सारे ट्रैवल हम सब करते हैं, वो तो सारे बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन से भी शख्स काम करता है। खुद करते हैं सारे, यूरोप चले जाएं, अमेरिका, लंदन, डॉक्टर कहीं आप भी तो चले जाएं, हैं वो यूके लोग तो खुद करते हैं सारा काम, एवरीथिंग सारा। यूके में आया हुआ है सारे, मैं कौन सा काम है? कपड़े वगैरह भी, सफाई, कपड़े शपड़े सारा। वेरी गुड, वेरी गुड, आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब वही बात आ गई, वेस्ट में तो बड़े से बड़ी डेजिग्नेशन में डॉक्टर्स की बात करें, लॉयर्स, एवरीबडी इट्स अ कल्चर। वहाँ पे हर बंदा अपना काम खुद करता है। मतलब मेरे अपने कॉलेज में, लंदन कॉलेज में या हाईफील्ड कॉलेज में कोई विजिटर भी मुझे मिलने आता है, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं सीईओ हूँ तो मैं जाके उसके लिए चाय का कप बना के लाऊंगी, बल्कि उसके बाद बर्तन उठा के मैं खुद भी उसको वॉश करके रखती हूँ। तो इट्स अ कल्चर। मैं अपने बिन खुद करती हूँ, बिल्कुल, मतलब अपने घर के बिन मैं खुद करती हूँ, तो इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। ये तो बल्कि एक अटैचमेंट आपकी, और आपको फिर एहसास होता है, और ये अपनाइयत होती है। आप किसी के लिए खाना अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं, वो खाने की बात ही थी, वो प्यार होता है जो आप फैमिली के साथ शेयर कर रहे होते हैं। घर की सफाई, वो घर के साथ अटैचमेंट है कि आप घर को अच्छा, तो जो दूसरा है जिसको आप हायर करेंगे वो उस तरह कभी भी घर को नहीं रख सकता। वो बात ये भी होती है सुंदर, वहाँ पे लोग क्यों करते हैं, डॉक्टर तलहा जो एग्री करेंगे बात से, बिकॉज वहाँ पे सारी चीजें वैसे बहुत सिस्टमैटिक हैं। हमारे पास चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है। अब वहाँ पे मैंने, जब मैं गई हूँ, मैं रुकी हूँ, मैंने देखा है हमारे पास क्या होता है, यहाँ हमने प्लास्टिक बैग्स को बोला है कि जी बैन है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने ये किया है स्टेप। वहाँ पे जब आप जिसमें हम बिन करते हैं, जो उनके बैग्स हैं वो फ्रेगनेंस है, उसमें डिफरेंट फ्रेगनेंसेस होती हैं, वेनिला हो गया, चॉकलेट फ्रेगनेंस हो गई है ना डॉक्टर तलहा, उसमें आप अपना सारा जो गार्बेज है वो कर रहे होते हो ताकि आपको वो भी गंदा ना लगे। एंड देन अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग है या कोई भी आपके बैकयार्ड में कोई बिन है, आप जाओ उसमें आप डाल दो, ठीक है, वो आएंगे। लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर हम आपके गली में कोई रखा भी है कि जी वो आपने वहां पे उसको सारा गार्बेज करना है, हम उस बिन में नहीं डालेंगे अपना कचरा, हम बाहर फेंकेंगे। ये बच्चे से ये मेंटालिटी है आप। और हमारे यहाँ ये है कि अभी तो बहुत सारी ऐसे मैं लोगों को देखती हूँ जहाँ पे मेरे फैमिली के जो जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी जितने इर्द गिर्द मैं देखती हूँ, ये बड़ा भी शऊर बेदार हुआ है कि भी आपने अपना काम खुद करना है और आपको सीखनी। देखें, हमेशा जो अच्छी बात है किसी की उसको आपको हाईलाइट करके सीखना जरूर चाहिए और अपना काम आपको खुद करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीज जरूर मेंशन, और बच्चे बच्चियां खास तौर पे जिनकी शादियां होती हैं उनको इनकरेज जरूर करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, घर के तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा जरूर आपको लेना चाहिए ताकि वो अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट आपकी उन काम के साथ और फैमिली के साथ रहे। अच्छा जी, अब बल्कि डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल आ रहा है, बहुत सारी खवातीन करी, फिर अगले सेगमेंट की तरफ। लेजर, बहुत सारी बच्चियां, हर बच्ची
जरूरी नहीं आप शोबिस से रिलेटेड हो, हर बच्ची का दिल करता है कि आप लेजर करवाएं, आपकी स्किन ग्लो करे। कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं स्किन ग्लो के लिए जो आपको लगता है कि ठीक है बच्चियां करवा लें तो कोई असर उसका नहीं होगा, साइड इफेक्ट? लेजर इज ऑल ओवर सेफ, सारा लेजर सेफ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्किन रिजुविनेशन के लिए कार्बन लेजर है, फ्रैक्शनल लेजर है, स्किन रिसर्फेसिंग लेजर है, फोटो रिजुविनेशन लेजर है, और इसमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज भी हैं। Nd:YAG है उसमें जो कार्बन फ्रैक्शनल लेजर है उसमें ग्लो आती है, कोलेजन प्रोडक्शन होती है, इलास्टोसिन प्रोडक्शन होती है, स्किन टाइट होती है, एजिंग साइन रिड्यूस होते हैं। लाइक आई एम 43, so I got a 20 years old daughter. Okay. Yeah. Wow. So Wow. you can see on from me as well. So it's a really good laser for skin tightening. Plus बहुत सारी खवातीन को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, हर्सुटिज्म होता है, कुशिंग सिंड्रोम्स होते हैं, मीन्स के अननेसेसरी बाल होते हैं पे, मुस्टाच पे या बियर्ड लाइन पे या कहीं भी, ठीक है, अंडर आर्म्स पे, तो आप परमानेंटली इसको रिड्यूस करवा सकते हैं थ्रू लेजर। नॉट ओनली दैट, थ्रेड वेन्स, बिल्कुल सही, स्पाइडर नेवी, हेमेंजियोमा, ब्लड स्पॉट्स, और बहुत सी चीजें। अच्छा, ये थोड़ी टेक्निकल चूंकि जबान है, लेजर चूंकि सारी लोगों को समझ आती है, लेजर की कितनी सेटिंग से आपको लगता है कि अगर जिनको प्रॉब्लम हो वो खत्म हो सकता है? मिनिमम कितनी सेटिंग? 2 से 3 सेटिंग्स में आप रिजल्ट देखना। फर्स्ट सेशन से ही आपको 30% रिजल्ट मिल जाता है, 6 सेशंस में आपको 80 to 90% परमानेंट हेयर रिडक्शन मिल जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? इसके साइड इफेक्ट्स नहीं। ठीक है, तो लेजर करवाया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप क्यों परेशान हैं? मैंने पूछा था अपनी स्किन के बारे में। जी जी, क्या हुआ? क्या लेजर अंदर आई और बैग भी आ गए, इतनी छोटी, इतनी कमली की उम्र में मेरे आ गए। मतलब नन्ही की उम्र में बात इसलिए मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। हाँ सर, ये चीज ये देख रहा हूँ आप, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो कर अब आप बोल रहे कि मेरे जुड़वा भी नहीं बोल सकते, जुड़वा भी नहीं बोल सकते, बड़े कजन है, बड़े कजन थे तो जैसे बड़े मार्केट में आए हैं, बड़े मार्केट में। नजर आप कितने साल के थे जब आप इनको देखते थे? तो काफी मेरे ख्याल उस वक्त मैं कोई नहीं 15-16 साल तो था जब। 15-16 साल तक बचपन चल रहा था आपका। वो बाली उमरिया थी ना, जब बाली आपकी उमरिया कमली होती हो है। सकती है तो उनकी बाली नहीं। अच्छा, आप कितने साल की, कितनी एज ब्रैकेट पे आते हैं? डायरेक्ट सवाल नहीं एज का करेंगे तो मैं 20s और से बात कर लेते हैं। teens में हाँ, नहीं, हम एज की बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा जी, बताएं ये बैग के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हम देखते हैं चीजें कि आपने कहीं खून की कमी तो नहीं है, मैं इजी वर्ड्स में बोलूंगी, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी अनार का जूस ज्यादा पिया करिए, सन ब्लॉक लगाया करिए। डर्माफिलर्स हम करते हैं चेयर ट्रफ अंडरनीज आईज के ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आपकी हाइपर पिगमेंटेशन तभी होती है ना जब वो एरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही। ये जो अंडर आई की स्किन है ये बड़ी फ्रेजाइल होती है, आपने रेगुलर मसाजेस करने हैं, सीरम्स लगाने हैं, एम्प्यूज लगाने हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अगर आप डर्माफिलर करवाएं अंडर आई केयर ट्रफ, और आप स्किन वाइटनिंग की ट्रीटमेंट अंडरनीथ आई वो लें, तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। और सन ब्लॉक एप्लीकेशन इज मस्ट। मुझे किसी ने बिल्कुल सादा सा एक बताया था कि कोकोनट ऑयल रात को जरा लगा के सोना, वो हाइड्रेट करेगा। जो कोकोनट ऑयल्स होते हैं, देखिए स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती है ना, स्किन की जो टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उसमें अगर कोकोनट ऑयल सिर्फ हाइड्रेशन करेगा, नरिशमेंट करेगा, लेकिन आपकी हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए जैसे डर्मोलॉजिका है, ब्राइटनिंग सीरम्स हैं, जो कि आपके जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन बाकी सब ये है ये, लेकिन कोकोनट ऑयल बुरा नहीं है, हाइड्रेशन के लिए ठीक है। यू कैन अगर आप ट्राई तो करें ना, ट्राई मैंने वो तो ये सेम ही मुझे भी हाँ, नहीं ऑब्वियसली आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह भी करते हैं, बट देन वो ज्यादा थिक हो जाता है ऑलिव ऑयल में। आप अगर ब्राइटनिंग चाह रहे हैं तो आप घरेलू टोटके के तौर पे मैं बता सकती हूँ, यू कैन मिक्स ग्लिसरीन and you can mix that lemon which is a citric and tartaric acid which is actually brightening agent। ठीक है, आप उसको रात को सोते हुए, क्योंकि ग्लिसरीन उसको माइल्ड कर देगी, वो आप लगा सकते हैं। ग्लिसरीन और नींबू को मिक्स करके आप लगाएं, और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करें। ओके, उसमें अर्के गुलाब मिक्स करके रात को सोने से पहले लगा लें। और वो आपके ऑल स्किन टाइप हाँ, बिकॉज अगर आप उसकी रेशो डिफरेंट कर सकते हैं, अगर ज्यादा ड्राई है तो ग्लिसरीन की रेशो ज्यादा कर ले, अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो ग्लिसरीन की रेशो कम कर। और ये आई बैग्स के लिए, आई बैग्स के लिए, हाँ आई बैग्स के लिए टी बैग्स आप वो भी रख सकते हैं, क्यूकम्बर रख सकते हैं, क्यूकम्बर जूस कर सकते हैं। बहुत चीजें आप ट्राई करें फिर बताइएगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, अगले सेगमेंट में कुछ ये होगा कि इंडिविजुअली
डॉक्टर साहिबा जी? अच्छा वो अपने सारे शुरू हो गए मशवरे लेना, वो हम ब्रेक में भी ना थोड़ा, लेकिन नहीं ऑब्वियसली आप लोग जो बात करेंगे अगलों का भी, लोगों का भी फायदा होगा। अच्छा जी, पहेलियां मेरे पास कुछ मौजूद हैं, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा, और मेरे पास जवाबात हैं, ठीक है जी, और इंडिविजुअल है ये, जिसको आपने बोल लेना विदाउट टर्न। रेडी हैं? हम रेडी हैं जी। जी पहली पहेली, वो कौन सी चीज है वो कौन सी चीज है जिसके पर तो बहुत चलते हैं लेकिन वो उड़ती नहीं? एक्सेलेंट, पंखा। वेरी गुड डॉक्टर तलहा, वेरी गुड, यू साउंड टू बी डॉक्टर। अच्छा जी, अब आए अब्दुर्रहमान, जरा आप एक सेकेंड। अब मैं जो पहेली पढ़ूंगी ना उसका जवाब मेरे पास है, उसकी एक्टिंग आपने करनी है। वो मुश्किल काम है, चलिए सही है, आपके लिए इजी होना चाहिए। चलें जी। डिबिया से निकला जिसने भी खोली, डिबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली। अब ये अब आप जवाब देखें, ठीक है जी। अब मैं जैसे जैसे लफ्ज बोलूंगी आपने वैसे वैसे एक्टिंग करनी है। चलें जी, अब इन पे ही रखिएगा कैमरा। डिबिया से निकला जिसने भी खोली, डिबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली। नहीं, हाँ पहली वो बताऊं जो जवाब है, जवाब है ना, जवाब का हिंट आप बताएं। डिबिया से निकला जिसने भी खोली, ये क्या कर रहे हैं? गोल ये कैसी अजीब हरकत है? क्या करूँ मैं अंडे अंडा अंडा डिस्क्वालीफाई ये क्या है? ये इनमें कुछ मिक्स हुआ है। नहीं डिस्क्वालीफाई। एक चांस और दे दें मैडम, एक चांस और बताएं जी, दे दें। बहुत शौक है सप्ली आ रही है आपकी बार दे दे थोड़ी। अच्छा दे दे, सारे कह रहे। ओके अब प्लीज पहले ये जवाब अच्छा रहने दे, पहले मैं पढ़ूंगी पहली। अच्छा जी, ना अंधेरा हुआ ना रात आई, ना अंधेरा हुआ ना रात आई, फिर किसने ये चांदनी फैलाई? ना अंधेरा हुआ ना रात आई, ना अंधेरा, एक्टिंग करें ना अंधेरा हुआ ना रात आई, बोलना नहीं है आपने, मैं बोल रही हूँ ना। फिर किसने ये चांदनी फैलाई? ये बैठी बैठी हरकतें हैं आपकी, क्या कर रहे हैं? चांदनी किस तरह मैं करूँ? कि मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैडम। चांदनी समथिंग जो मुझसे भी नहीं होगा। एक्सीलेंट, मेरी एक्टिंग देख के इनको पता लगा है। डॉक्टर आप वैसे जीनियस है, इनकी एक्टिंग बिल्कुल जो है सीरियसली नहीं, मतलब एक्टिंग तो शायद मैं भी उस तरह से ना कर सकूँ, बता सकूँ। अब ये ट्यूबलाइट और चांद और चांदनी कैसे आप? अच्छा जी चलेगी, मेरा आपने अंडरस्टैंड कर ली थी बात। हमारी बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग यहाँ पे सारों ने की है, इसलिए आप ये ना करें जी। ये वाली एक आखिरी पहेली, चले जी। खाता है ना पीता है, खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। रेडियो। एक्सेलेंट, आगे बैठ जाए। रेडियो, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब पढ़ते हैं, ये मुझे लगता है आप हमें नोट शेयर किएगा। ये मुझे लगता है थ्री देख लिए काल। अच्छा जी, सर के ऊपर एक सर गोल, इसका माथा गोल धड़। ये इसका कोई वो नहीं बन रहा, वजन नहीं है, लेकिन ये कोई शेर नहीं है, तो आपने इसको वैसे समझना है। सर के ऊपर एक सर गोल, इसका माथा है गोल धड़। वेरी इजी, बहुत लोगों को शौक है इसको पहनने का। है आपको? एक्सेलेंट, बिल्कुल टोपी, कैप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गरारा कैसे आया था? मैं तुक्का मार दिया। बर्थडे तुक्के थोड़े लड़कियों को शौक होता है पहनने का। मैंने तो लड़की का नाम भी नहीं लिया कि लड़कियों को शौक है। मुझे नहीं, आपने ना असल में जज्बातियों से ज्यादा बहुत ज्यादा कहानी आ रही है। हुमा से पूछना पड़ेगा इसमें क्या था जो इन्हीं पे अफेक्ट हुआ है। अच्छा मेरा सवाल है, उमर से उन्होंने एक रेसिपी बताते हुए कहा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कहा था आपने? हुमा सॉरी आपके कान भी बच रहे हैं। सॉरी हुमा कहा है आपने टूथपेस्ट? कोई चीज शायद मिसिंग होगी हो तो रहमान को वो याद आ रही है, मैंने नहीं। टूथपिक होता है, टूथपेस्ट तो नहीं। टूथपिक रेसिपी में कहा है टूथपेस्ट। अच्छा मुझे सच बताया, घर से नाश्ता करके आए हैं? नहीं, मुझे था यहाँ पे आके जरा। आपकी बेगम ने नहीं दिया नाश्ता? नहीं, निकल। अच्छा जी, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब्दुर्रहमान के अलावा कौन विनर है? रेस विनर है। वेरी गुड, डॉक्टर तला। डॉक्टर तला इज द विनर, यस। क्लैप हो जाए जी। अच्छा जी, इसी के साथ हम अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं चाह रहा हूँ कि मूछें भी मैंने रखी है, दाढ़ी आप भी रखी है, दाढ़ी मेरे से ले लें और वो भी रखी है मैंने, तो कोई बात हो जाए
अपने बड़े पन की करते हैं, सब लोग आज जानते आ हैं जाए सब। आ जाए, बहुत सारी क्लास में मदर राही।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस, नाम पहले शामिल, फिर जो आपने मैसेज भेजा है वो जुबैर नवीद है, नदीम खान है, सैफुल इस्लाम है और राशिद शहबाज है, मोहम्मद इमरान है, हादिया महक है, हुमा चिली मिली है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, समरीन खान है मर्दान से, आप सबको सलाम। और कह रहे हैं कि जी मर्दान का मौसम बहुत ठंडा है और सर्दी भी है, और इस मौसम के अंदर हुमा आपसे वो मुखातिब है कि समरीन कह रही हैं कि आप जो रेसिपीज बना रही हैं दिल कर रहा है बनाने को, तो जरूर बनाएं। और आप अगर कोई मशवरा देना चाहें हुमा। बिल्कुल बनाएं, और जब सर्दी है तो कोशिश करें कि, और छुट्टियां वैसे तो खत्म होने वाली है, आखिरी छुट्टी, हाँ। तो जरूर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम निकालें और इंगेज करें बाकी भी लोगों को, और कुछ रेसिपी जो बता रहे हैं वो ट्राई करें। अच्छा, गर्मियों में तो ये होता है ना कि आप जाएंगे, पसीना निकलेगा, ये टेंशन वो टेंशन, बंदा आवाजार हो जाता है कुकिंग करते हुए, खास तौर पे फिर जब आपने डीप प्रॉपर बनानी है। सर्दियों में तो यू एक्चुअली इंजॉय कुकिंग, आप इंजॉय कर सकते हैं, एक तो सुस्ती खत्म आपकी हो जाती है, फिर आप जब एक दफा किचन में घुसे तो दिल करता है कि आप जो है और चीजें भी बनाएं, एक्सपेरिमेंट करें, तो जरूर इंजॉय करें जी, रेसिपीज बनाएं। नाहिद अशरफ हैं पतोकी से हैं, सलाम सुंदर आपकी टीम को सलाम, थैंक यू सो मच, और हमारा वीकेंड अच्छा बनाने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स टीम ब्रांच एट होम, बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा अब्दुर्रहमान, ऑब्वियसली आप एक्टिंग भी एंड देन थिएटर एंड एवरीथिंग, सारा काम साथ के कुछ कहना चाह रहे हैं? थिएटर करता था, अब मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल इतना हो नहीं रहा, तो वो एक कमी से महसूस होती है। अच्छा, थिएटर कहते हैं कि जो थिएटर का आर्टिस्ट है उसकी बड़ी ट्रेनिंग हो जाती है, फिर जब अगर थिएटर करके आप आओ खास तौर पे टीवी के अंदर, तो कॉन्फिडेंस आप बहुत गेन कर लेते हो, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। हर तरह की तो नहीं, लेकिन काफी सारा, जिस तरह आप लाइव शो कर रही हैं तो लाइव करना आसान काम नहीं है, थिएटर भी लाइव होता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, बीच में छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो आपने उसको कवर करना है। तो जब थिएटर में आप एंटर होने वाले होते हैं ना, तो बड़ा दिल धक धक कर रहा होता है। मैंने ये सुना है जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं कि जब मतलब उनकी 1000वीं परफॉर्मेंस भी है तब भी उनका दिल धक धक करता है एक दफा, तो वो आपको मजबूत कर देता है, वो आपको इतना टेंशन होती है उस वक्त कि आप पक्की एक्टिंग करते हैं। हाँ। दूसरा, थिएटर का जरा मीडियम उस तरह का है कि आपको ज्यादा एग्जैजरेट करना पड़ता है, एक्सप्रेशन थोड़े लाउड करने पड़ते हैं, तो जब टीवी में आते हैं तो आपको थोड़ा, आपके पास वोकैबुलरी सारी एक्सप्रेशन की हो गई होती है, थोड़ा आप लोगों को सेटल करना पड़ता है, तो वो आपकी प्रिपरेशन सारी ट्रेनिंग होगी होती है। थिएटर में ये था ना, आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिला है, या आपको क्लैप मिलेगी या हूटिंग कर, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डायलॉग बोला हो, कोई ऐसा सीन कर रहे हो और नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया हो, कंफ्यूज करने की ऑडियंस ने कोशिश की हो जाता है। असल में एक दफा था ऐसा कि वो ऑडियंस बिल्कुल ही हमारा कॉमेडी प्ले था और ऑडियंस जो बैठी ऐसे ऐसे देख रही है, तो थोड़ी देर बाद आपको भी वो एनर्जी जो है ना वो भी आपको भी मिलना शुरू हो जाती है कि काम सही नहीं जा रहा। हाँ, तो फिर क्या किया? तो फिर हमारी क्लास हुई डायरेक्टर ने, ठीक है, हमारी किट लगाई थी खासी, और उसके बाद फिर अगले दिन हमने बहुत बेहतर किया। और क्या अच्छा क्या कमी क्या थी? क्या वो वाकई प्ले इतना फनी था? क्या पता डायरेक्टर की गलती हो कि उस तरीके से ना किया हो, आप लोग सही कर रहे हो उसको? प्ले फनी अगर नहीं है तो फिर आप उसको मतलब ठीक करके लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस जो है उसमें तो एंजॉय करने आई है, टाइम दे रही है अपना। तो वो कभी कभी ये होता है कि एक्टर थोड़ा सा उनका मोरल डाउन होता है, या ट्रैवल करके आए हैं, या कोई मसले हैं, तो वो आपके ऊपर आ जाता है। हालांकि एक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो मसाइल है वो साइड पे रखे, और जब परफॉर्म कर रहा है तो वो सही परफॉर्म करे। लेकिन ऑडियंस से भी बहुत फर्क पड़ता है, मतलब क्योंकि मैं होस्टिंग करती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स की, सेमिनार्स एंड मुझे अभी मैं जैसे बहरिया में थी इस्लामाबाद का, जो मैंने यूए का शो किया, अब मैं अस्सलाम वालेकुम बोल रही हूँ आके, तो भाई वालेकुम अस्सलाम बोल दो, ये तो दुआ भी है, और मतलब उसमें भी आप एकदम ठंडे तरीके से वालेकुम अस्सलाम, मैंने खाया नहीं है, कुछ पहले खाना खिलाएं, कॉफी पिलाएं, देन यू गोना लाइक बूस्ट अप योरसेल्फ, फिर ऐसा ऐसा करना पड़ता है। मुझे लगता है एक मेरे मतलब ऐसे हम टीम में बैठे हुए थे पिछले दिनों, तो एक को होस्ट थी, मुझे कहती है नहीं वहाँ की तो आवाम ही ठंडी है। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट आवाम, यू हैव टू चीयर देम अप, बिकॉज आप जाते हो उस ऑडियंस को एनर्जाइज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, आपने ऑडियंस के साथ उनके दिमाग से खेलना होता है। अब जैसे अभी मैं शो में थी ना, तो मैंने वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा यू गाइज माइट हैव सीन मी ऑन स्क्रीन, या हो सकता है कभी मुझे सपनों में देखा हो। तो एक बंदा उठा साइड से, कहता है सपनों में देखा है मैंने आपको, आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर हूँ, जब जब आपकी पिक्चर देखता हूँ वही पिक्चर मुझे रात में ख्वाब में आती है। मतलब लिटरली वो बोल पड़ा, और जब उसने ये बोला है तो पीछे सब तालियां बजाना शुरू हो गए। लेकिन एक ये भी तो है ना अब्दुर्रहमान कि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होगा, वो आपको इवन परफॉर्म करते हुए भी होता है, ऐसा ही है कि आई कांटेक्ट होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत दफा इत्तेफाक हुआ ऐसा कि अभी वहाँ मोन्ट्रियल में शो था कनाडा में, तो 2-3 आर्टिस्ट थे, तो पहले उन्होंने परफॉर्म किया, मुझे कहते हैं कि आपने करना है, मैंने कहा जो आप देख लो, आपने करना है आप कर लो, मैं करना है मैंने, ये हम पहले करते हैं, कर लो आप। ये एक भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, कहते यार माहौल बहुत ठंडा है,
मैंने कहा अच्छा ठंडा है, देखते हैं किस तरह ठंडा है। ये रिस्क वाली बात ये है कि आपको खुद करना पड़ता है, पब्लिक इंजॉय करने आई होती है, ठीक है ना, एंटरटेन होने आई होती है। अब परफॉर्मर अगर अच्छा है वो आपने किस तरीके से उसको लेके उनको गर्म करेगा, माहौल को एनर्जेटिक करेगा। तो मैंने देखा यार ये इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये की, अगर मैं भी ये करूंगा, मेरे दिन में था पहले कि मैं कहाँ पहले पढ़ूंगा ठंडा, फिर शुरू होगा नहीं। मैंने आते ही उगा दिया सोना मौजूद हो रे, माहौल ऐसे ठंडा तो सारे नाचने एनर्जी से भरपूर। लेकिन नजर ऐसा ये भी मैंने कई कॉन्सर्ट्स के ऊपर देखा है कि अक्सर लोग फरमाइश करते हैं तो जो सिंगर्स हैं वो इम्प्रोवाइज नहीं भी करते, जो उन्होंने जहन एक बनाया होता है कि जी मैंने ये लिस्ट में से गाना है। तो आप हैं उनमें से जो इम्प्रोवाइज बिल्कुल आती है, बहुत सारी फरमाइशें ऐसी भी आती हैं कि माहौल बहुत गर्म जा रहा है, जोशीले गाने चल रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, गाने की फरमाइश, तो एक स्लो आप बोलेंगे ये कर देंगे और उनको अब आपने मुतमिन भी करना ही है, पब्लिक आपको सुनने उनको बोलते कह देते होते हैं यार आपकी फरमाइश भी पूरी होती है, टेंशन ना लो, कानून को कह देते हैं तो पहले दूसरी फरमाइशें ऊपरी, लेकिन आपने कंट्रोल खुद करना है, जिस तरह करना है उनको, जिसने फरमाइश की उसको भी पूरा रखना है, अपने राजी रखना है और माहौल को भी गर्म रखना है। बिल्कुल जब आपने सत्यानाश करना शुरू होगा एंड तो उसकी फरमाइश पूरी कर दो, लेकिन ये सारे जो एक फरमाइश पूरी करने के दूसरा माहौल का खराब ना करो ना। बिल्कुल सही। अच्छा फरमाइश की बात आ रही है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाइव जरा परफॉर्मेंस हो जाए, डुएट अगर परफॉर्मेंस कर लें, चिट्टा चोला परफॉर्म अगर आप कर लें, हाँ तो हो जाए, क्यों नहीं। चले जी माइक आपका, बहुत सारी क्लैप है, चिट्टा चोला जी। काले कपड़े पाए होए नी ओयो ना तेनू लुट लेना है जेड़े सजन बनाए होए। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेगा डोले दी वो चिट्टा चोला लावा किनारी, वो चिट्टा चोला लावा किनारी, ओ पूरी निकली ढोले दियारी, वो चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेगा खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन जी। खवातीनों के साथ लास्ट सेगमेंट है और आप लोगों के नाम शामिल करने हैं। आकिब अब्बास हैं, हाजी अरशद हैं, सीरत खान है, मोहम्मद औरंगजेब, आप सबको सलाम। आहद मीर हैं, अनवार मोगल हैं और नुदरत ख्याल है, मुजम्मिल खान है, अंसर अब्बास हैं, आप सबको सलाम पेश करें और प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर बताती चलूं जी कि लेटर्स का सिलसिला बिल्कुल जारी रहना चाहिए। सो 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल आईडी है। इंस्टा पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, ब्रांच एट होम के फेसबुक पेज पे। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट है
इससे पहले कि मैं आप लास्ट सेगमेंट एक्सप्लेन करूं डॉक्टर साहब क्विकली, हमने स्किन की, फेस की तो बात की, हाथ पैर का सर्दियों में कैसे ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि हाथों और पैरों का भी अच्छा और साफ सुथरा लगना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं बच्चियों को देखती हूँ मुंह पे मेकअप हो गया, गर्दन मेकअप कर लिया, हाथ जो है उनके ड्राई स्किन, इट लुक्स नॉट गुड। तो बताएं कैसे ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ले सकती है, E45 ले सकती है, ग्लिसरीन इज रियली गुड मॉइस्चराइजर। सपोज उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छी ब्रांड, डर्मोलॉजिका इज अ गुड ब्रांड। ठीक है, हम ब्रांड्स की नहीं बात करेंगे, लोकल आप देसी टोटके कोई देसी टोटकों में ग्लिसरीन इज रियली गुड। आप ग्लिसरीन में लेमन ऑयल मिक्स कर सकते हैं, उसमें रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर डेली मॉइस्चराइज करें, वैसलीन यूज करें। डॉक्टर साहब एलोवेरा जेल मैंने सुना है कि वेरी गुड फॉर स्किन, आप फेस पे भी लगाएं, हाथ पैर पे भी लगाएं। कुछ बालों के लिए भी एलोवेरा जेल होती है जो टैंगल्स को खत्म, बालों में अड़े जो होती हैं वो। एलोवेरा जेल इज रियली गुड, बट एलोवेरा जेल हाइड्रेटिंग है, ठीक है, नरिशिंग कम है, यानी कि उसमें मॉइस्चर लेवल जो जज कर लेती है। आप वो जरूर लगाएं, लेकिन उसके साथ नरिशिंग भी रखें। स्पेशली सर्दियों में डर्मेटाइटिस और एक्जिमा के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा बंद रखते हैं पाँव को तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। उससे भी आप थोड़ा कोशिश करें कि पाँव को धो के साफ करके खुली हवा में थोड़ी देर छोड़ें। और वोट्स के लिए अक्सर वोट्स और रूकस हो जाते हैं पाँव में, ठीक है, या आपके हाथों पे हो जाते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन हाइजीन। ठीक है, हमेशा अपने वाटर में एक डेटॉल का ड्रॉप डाल लें, पाँव उसमें सोक कर लें। ओके, और पाँव की खूबसूरती के लिए आप उसमें लेमन ऐड कर सकती हैं, उसमें आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकती हैं, उसको आपकी स्किन ब्राइटन भी होती है, और उसके बाद आप उसको लगा के जेली लगा के क्रीम लगा के वैसलीन बोलते हैं, वो लगा के सॉक्स पहन के रखें। बिल्कुल सही, और मॉइस्चराइज करके स्किन को रखें। क्योंकि मैंने कहा स्किन की बात कर ली, फेस की हम बात कर लेते हैं। प्लीज जितनी बच्चियां देख रही हैं रिज भी इसको एंडोर्स करेंगी, हाथ पैर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कैसे रखती हैं हाथों पैरों का ख्याल? इन्होंने जो बताया बहुत अच्छी टिप है, वैसलीन लगा के आप, जैसे अभी तो सर्दियां आप सॉक्स ऑन करके सो सकते हैं, बट अगर गर्मी भी हो तो जो आपके स्किन वाले जो लाइट सॉक्स होते हैं वो अगर आप लगा लें, देन ये है कि मॉइस्चराइज करें, प्रॉपर मैनी पैडी करवाएं या करें घर में जैसे भी है, क्योंकि लड़कियों के तो हाथ पैरों से ही पता चलता है कि वो कितनी नफीस हैं और खूबसूरत है। मजे की तो बात यह है कि दूसरे को मौका नहीं था, खुद ही अपनी तारीफ करी। वेरी गुड, आई लाइक द फैक्ट। आप देखें बड़ी अच्छी बात जो रिस्क की, और इशारों में उसने बता भी दिया। हाँ, नहीं, मैं आपको रिस्क की बड़ी एक अच्छी आदत बताऊं, और इसलिए आई डू लाइक हर अलॉट, इस वजह से कि ये वो हैं कि जो शो में आती हैं तो शो को एनर्जाइज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा बनती हैं, दैट इज वेरी गुड, ताकि आप लोगों को एंटरटेन, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। तो इनके लिए क्लैप इस बात पे होनी चाहिए। आई ऑलवेज अडोर्ड हर एनर्जी। अच्छा जी, और अब्दुल रहमान, मुझे कहा जा रहा है ऐसे, वैसे मैं इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन चले क्लैप कर ले इनके लिए भी। नहीं, अब्दुल रहमान इज ऑल्सो वेरी नाइस, और हमेशा ये होता है, मतलब आम जबान में को अपना भी मजाक उड़वा लेंगे ताकि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और ये बड़े लोगों का बड़ापन होता है। सो यू वन ऑफ दोज। नहीं, अब इतना करने की जरूरत नहीं। एंड मजर आप भी हैं, मजर के लिए भी क्लैप करें, सबके लिए करें, ऐसी कोई बात करते हैं। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूं, चूंकि लास्ट सेगमेंट, लास्ट राउंड डब स्मैश आयशा सेगमेंट का नाम होगा। हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, क्लिप पे डबिंग करनी है, आपने स्क्रीन की तरफ देखना है। पहले तो हम क्लिप देखते हैं ना, उसके बाद वापस आते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। जी दिखाएं क्लिप। और अगर अब टूथपेस्ट खत्म हो तो तुम्हारा फैसला पर जाने से क्या कहता है? हमारी मंजिल पड़ा वो कर लीजिए। नहीं, कर लीजिए। अच्छा, जाता हूँ। सुनो, किसी खुदा की बात से फलसफा मत गुजारा करिए। पता तेरी बातों से कितना दुख होता है उन्हें। वो तो हर को सच बोलने की तलकीन करते हैं, सच सुनते क्यों नहीं है? जी, आसिफ रजा मीर साहब, रूही बानो साहिबा, क्लैप हो जाए जी, वाओ। और रूही बानो साहिबा को जब आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, बस फिर आप उन्हीं को देखते रहते हैं। और रिज, आप तो फैन होंगी, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना हो, है ना? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे लिए, मतलब चलते फिरते इंस्टीट्यूट्स हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हमारी नेबरिंग कंट्री में भी हमारे ड्रामे, ये पुराने ड्रामे दिखा के वो लोग पढ़ाते हैं कि इनफैक्ट एक्टिंग होती क्या है। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें इन लोगों को देख के सीखने का मौका मिल रहा है, वरना लोगों के पास अच्छे उस्ताद नहीं होते, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे टीचर्स से मिलना बहुत रेयर है आजकल। तो हम लोग वी आर लकी टू हैव। बिल्कुल सही, वंस अगेन जी क्लैप हो जा रही हूँ रूही बानो साहिबा।
आपने करना है इस पे परफॉर्म या आपने करना है? आपसे देखें, आप करें इन मूछों के सामने हम कैसे कुछ नहीं देखिए, अपने ऊपर से हमारे ऊपर वो इतने बड़े नाम है, मैं चाहती हूँ मतलब कॉम्प्लीमेंट करें। अच्छा सुने, एक काम करते क्योंकि आयशा परेशान हो जाएगी, मदद तो फिर कर लेंगे। इनके होते हुए परेशान आप कैसे हो सकते हैं? अच्छा जी, अब आपने इम्प्रोवाइज इसको करना है अपने हिसाब से। रेडी है अब्दुर्रहमान? एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। ये देखो टूथपेस्ट फिर खत्म हो गई। तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा था नहीं ले आओ, इसको निकाल के बहुत क्या करूं मैं, तुम्हारे दांत इतने काले पीले, कुछ नहीं होगा। दांतों की बात ना करो। मैं अच्छा सुनो, हूँ क्या, इधर आओ, बात सुनो मेरी। देखो मैं तुम्हें कई दफा बता चुकी हूँ कि पान खाना छोड़ दो, अच्छी आदत नहीं होती है। मैं ये सबको दे रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ। टेंशन होती है, पान ना खाओ, क्या खाऊं? दिमाग खोल। एक्सेलेंट भाई, वेरी नाइस। और बीच में जो वो हूँ था जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं और जो मैं कहती हूँ कि वो डालना है, वेरी गुड जी, दोबारा क्लैप हो, वेरी नाइस, वन ऑफ द बेस्ट जो सो फार। बहुत और भी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप अच्छा जी, अब आप रेडी हैं? आप लोगों के लिए डिफरेंट क्लिप होगा। अच्छा, अपनी आवाज आपने थोड़ी ऊंची अपनी रखनी है, ठीक है जी, लेकिन पहले क्लिप देखते हैं जी, दिखाएं क्लिप। आओ बैठो। जी शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। अरे बाबा बैठ तो जाओ, आराम से बात करते हैं। हमारी बीवी, हर जगह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, आपके बराबर बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। चलो मैं भी खड़ी हो जाऊँ। जी नहीं शुक्रिया, आप बैठिए, ये तो खातून की हैसियत से भी आपका हक है। मेरी समझ में नहीं आता कितना सेंसिबल होने के बावजूद ये तुम किन कामों में पड़ गए। तालीम कितनी है तुम्हारी? बीए का इम्तिहान दिया था जी, फेल जी। दिन ड्रामा सीरियल, वसीम अब्बास साहब इसमें आपको नजर आए, क्लैप हो जाए जी। और व्हाट अ प्ले, व्हाट अ क्रिएशन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपने इत्तेफाक हुआ काम किया है इनके साथ, और बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा मजा आता है। मतलब होता है ना सेट का माहौल बड़ा अच्छा हो जाए। जो कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं तो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, तो ही इज वन ऑफ देम। बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहेंगे? सीखने में आपने सीखना गुड बात, रियली गुड बात। अच्छा जी, रेडी हैं आप? चले जी, एंड स्क्रीन की तरफ देखना, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। चाहे आप देख लें वो प्लाज्मा आपके लिए इजी है या आपके लिए वो इजी है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा इजी है, ठीक है जी। एंड आहिस्ता आवाज में नहीं बात करनी, ऊंचा बोलना है जी। दिखाइएगा क्लिप अब। अरे आप बैठे, सब्जी नहीं लेकर आए आप? सब्जी लेने गया था लेकिन टिंडे नहीं मिले। तो इतने क्यों, आपको सब्जी क्यों नहीं मिली इतने बड़े बाजार से? मिली है लेकिन जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिली, इसलिए। अच्छा हाँ, तो अच्छा रुको, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर बैठो आराम करो, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। क्यों, आपको तो सब्जी मिली नहीं है? आप बाजार में गए, आपको कहीं से भी टिंडे नहीं मिले? समझ में नहीं आता कि आपको इतने बड़े बाजार में कोई बात नहीं, आप कोई और सब्जी बना लो। नॉट बैड एट ऑल, गुड एफर्ट। देखें टॉपिक एक तो अच्छा लिया उन्होंने, आयशा ने एफर्ट बहुत अच्छी की, मजहर ने भी बहुत अच्छी एफर्ट की, वेरी गुड जी। जज साहिबा, मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ। वर्डिक्ट बैलेंस है, दोनों ने अच्छा किया। मार पता नहीं किस साइड से पड़ेगी। नहीं वैसे मैं बताऊँ, मैं ये नहीं मूव बैठी है, मैं इसका वैसे ही फैन हूँ। में बहुत सारे, एक बहुत ही ड्रामा जा रहा था वो सुल्तान वाला, क्या था? हाँ मेरा सुल्तान में, और उसमें इश्क़े ममनून में भी, और इतना अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो इसकी वॉइस थी इसकी और जो उसका एक्ट था, बोलने का स्टाइल, लोगों ने वो हटते नहीं थे एक मिनट के लिए। लेकिन भाई मैं चूंकि मैं जिस सीट पे, वैसे भी नहीं, लेकिन जो मेरी पर्सनैलिटी है वो ये है कि भाई हम सबके साथ इंसाफ। तो आप दोनों ने एफर्ट बहुत अच्छी की। आयशा को खास तौर पर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आप ना कर पाए, लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट नहीं, वो क्लैप हो जाएगी, वेरी गुड भाई, हमारे लिए तो सारे विनर्स है। थैंक यू सो मच।
अब्दुल रहमान, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you. एंड इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और दूसरों को हंसाते रहे. इंशाल्लाह. थैंक यू. Thank घर you. जाएंगे अब इसके बाद? हाँ, अपने ये भी बता दें अपने. अपने घर हाँ, सौदा लेना है, ब्रेड लेनी है, अंडे लेने हैं. टींडे भी लेना है. टिंडे तीनों तो मेरे लिए रहे. अच्छा जी, कुछ बेगम के लिए सरप्राइज भी ले जाइएगा. हाँ, हाँ. बोले मैं खुद ही सरप्राइज हूँ नीचे मैं तो इतना बड़ा नहीं क्या बढ़ में रहने दे. सर पे आईज हूँ. सर पे आई हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. हम आपको और स्क्रीन पे देखना चाहते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हमेशा मैं जब भी लाहौर आती हूँ, जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे बहुत मजा आता है. आपकी प्लेजेंट स्माइल, देन ये सेट, हमारे कैमरामैन, हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहसिन जाफर साहब और ये सारी टीम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि इस पैनल के जरिए मेरी आप सबसे मुलाकात हो पाती है. ऐसे लाइव. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. आपने बहुत आसान अल्फाज में ऐसी टिप्स बताई जो घर बैठे बच्चियां, मुझे खुशी हुई कि घर बैठे बच्चियों के लिए आसानी होगी. थैंक यू सो मच. Pleasure was of mine. तो आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम था. Really loved it. Thank you. Producer, director, set, host, everyone is really knowledgeable, and I really appreciate your time. थैंक यू सो मच. अच्छा जी मदर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर वीडियोस, गानों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. आयशा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और मैं कुछ कहना चाहूँगी, स्पेशली हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं मोहसिन जाफरी साहब, उनका स्पेशली थैंक्स, और आपका भी बहुत थैंक्स. एक्चुअली मैं शो की फ़ैन हूँ और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि एज अ गेस्ट मुझे बुलाया. आपके अंदर टैलेंट था, हमने वादा किया हुआ ऑन एयर भी कि जिनके अंदर टैलेंट यंगस्टर्स के अंदर होगा उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे. आप हैं टैलेंटेड, इसी तरह सीखती रहे और अच्छा काम करें. रियली एक्साइटेड फॉर मी कि मैं आज शो पर आई. बहुत अच्छी बात है. मोहसिन जाफर साहब हैं शुरू से माशाल्लाह अच्छे नहीं, हैं, और इस तरह के शो खासकर म्यूजिक के, खासकर एंटरटेनमेंट के, नहीं, हमने हमेशा मोहसिन जाफर साहब को मैं ये क्रेडिट जाता है इस चीज का कि हमेशा अच्छा म्यूजिक, अच्छी एंटरटेनमेंट उनके शो से होती है. Thank you और so मैं much. चाहूंगा उनके लिए क्लैप. बिल्कुल पूरी टीम और मोहसिन जाफर साहब के लिए क्लैप. और खास तौर से चूंकि खवातीन आजाद वीकेंड का शो है, फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मद्देनजर रखते हुए हम हर चीज का फ्लेवर, जिसमें नॉलेज भी हो, म्यूजिक भी हो, एक्टिविटीज भी हो, कुछ सीखने का मौका मिले, अपनों के साथ बैठ के कुछ प्यार की बातें हो, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हो, और खास तौर पे कल्चरल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है. तो थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए. हुआ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. जाने से पहले जी मजहर, आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में. सोना माशूक होवे, हक बंदूक होवे, सोना माशूक होवे, हक बंदूक होवे, रोके जो दइए ओनू ठोक डोला, अपने ता बस दो ही शौक डोला, अपने ता बस दो ही शौक डोला, आशिक मजाज ऐसा नोक डोला, अपने ता बस दो ही शौक डोला. सोहना माशूक होवे, हक बंदूक होवे, रोके जो दइए ओनू ठोक डोला, अपने ता बस दो ही शौक डोला, अपने ता बस दो ही शौक डोला. तेरे हथ जिंदगी दी ढोला कमांड होती, करांगे पूरी जो भी तेरी डिमांड होती. तेरे हथ जिंदगी दी ढोला कमांड होती, करांगे पूरी जो भी तेरी डिमांड होती. चिट्टा चिट्टा वाइट वाइट, मुख सोना टाइट टाइट, चिट्टा चिट्टा वाइट वाइट, मुख सोना टाइट टाइट, दिल वाला कर बूहा नोक ढोला, अपने ता बस दो ही शौक ढोला, अपने ता बस दो ही शौक ढोला.
गारंटी तेनू प्यार दी देने थोड़ा ने गल सच्ची दिल वड़ कहने लाइफ गारंटी तेनू प्यार दी देने सानू इग्नोर ना कर जिंदगी बोर ना कर सानू इग्नोर ना कर जिंदगी बोर ना कर ऐले फड़ मजे नाल पी कोक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला बेशक ढोला साडा सिंपल ते सादा तूए हिजर खयात दे पर दिल दा शहजादा तूए बेशक ढोला साडा सिंपल ते सादा तूए हिजर खयात दे पर दिल दा शहजादा तूए साउंडो वर लाउग सारा नचदा कर रौग सारा साउंडो वर लाउग सारा नचदा कर रौग सारा गावे जद मंजर भंगड़ा फौक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला आशिक मजाज अता लोग ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला सोहना माशूक होवे हथ बंदूक होवे रोके जो दइए ओनू ठोक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला अपने ता बस दो ही शौक ढोला